एक साथ विदेश दौरे पर हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर मोदी सरकार पर विपक्षी दलों का प्रहार थमता नजर नहीं आ रहा। विपक्ष के पिटारे में एक से एक आरोप और सवाल है। सिया पार्टी मोदी सरकार को घेरने के लिए एक अलग लाइन पर खड़ी है, जबकि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर खुद सरकार के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। शशि थरूर ने अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी तो दी ही, साथ ही ये भी कह दिया कि पाकिस्तान से युद्ध करने में भारत की कोई रुचि नहीं, लेकिन भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा बल्कि करारा जवाब देगा। इंडिया sent a clear message, number one, that it was not going to take terror lying down, it would answer, but equally that by delivering very precisely calculated, calibrated strikes on very specific targets, it was also sending a message that this is not meant to be the opening salvo in a protracted war, but just an act of retribution, that we were prepared to stop with that act. We are not interested, and we still remain absolutely clear that we are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls, and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us. शशि थरूर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सरकार और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने की बजाय कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान ही सुन लेते। आतंक विरोधी इस लड़ाई में कम से कम ओवैसी से ही सीख लेते। मोदी सरकार को सबसे ज्यादा घेरने वाले ओवैसी आतंक विरोधी लाइन में सरकार के साथ खड़े हैं। बहरीन में ओवैसी ने दुनिया को संदेश दिया कि इस लड़ाई में पूरा भारत एकजुट है। ओवैसी ने पाकिस्तान को irrespective of whatever political affiliations we belong to, yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands, and I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan in grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. Problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. No difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it says killing of one innocent person is like killing of whole humankind. सभी दलों के सांसदों का डेलीगेशन भारत का पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रख रहा, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा, लेकिन देश में अलग ही सियासत हो रही। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में ट्विटर वॉर चल रहा, सवाल जवाब थमने का नाम नहीं ले रहे। अब कांग्रेस नेता अलका लांबा ने तो ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन ब्लू स्टार बता दिया, जिसे बीजेपी जानबूझकर सेना का अपमान बता रहे। एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उसकी अध्यक्षता आप करिए। हम मांग करते हैं कि ये समय की मांग है, जरूरत है कि संसद के दोनों सत्रों को शीघ्र बुलाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पूरी व्यापक देश को जानकारी सरकार के द्वारा दी जाए। सेना का अपमान यही तो कांग्रेस की पहचान। करो पाकिस्तान का गुणगान, दो शरीर एक जान, कांग्रेस और पाकिस्तान। देखिए, आज फिर से सेना का अपमान किया। अलका लांबा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन ब्लू स्टार बता रही है। मतलब कि उन्हें बेसिक जानकारी नहीं है या जानबूझकर लगातार सेना पर यह हमला किया जा रहा है। टेरर को ट्रेजेडी बोलना, व्हाइट वॉशिंग करना, ऑपरेशन सिंदूर को ब्लू स्टार बोलना, ये कांग्रेस ने अपना असली चरित्र दिखा दिया है। ये सेना विरोधी है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी तो प्रधानमंत्री मोदी के लहू नहीं गर्म सिंदूर वाले बयान पर तंज कस रहे। ब्लड में सिंदूर होना गलत बात है।
पहली बार मैं सुना हूँ, कोई भी सुनेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा भाई। हम तो कल से सुने तो हम सदमे में हैं, हमको नींद नहीं आया रात भर। कैसे भाई सिंदूर कैसे चला गया, खून में सिंदूर कैसे चला गया? तो मैं थोड़ा भयभीत है, आश्चर्यचकित है। हम चाहेंगे कि मोदी जी के खून से सिंदूर निकाला जाए। सियासत विपक्ष की तरफ से ही नहीं, विवादित बयान बीजेपी की ओर से भी आ रहे हैं। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दिया। जांगड़ा ने कहा, अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था, इसीलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। बाद में सफाई देते हुए जांगड़ा ने कहा, उनका मकसद युवा पीढ़ी को मोटिवेट करना था। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। तो आतंकवादी थे, उनको तो मारना था, वो तो मारने के लिए आए थे, हाथ जोड़ने से तो को छोड़ने वाले तो थे नहीं। बस यही संदर्भ था मेरा कि अगर ऐसी परिस्थितियां कभी आए भी तो हम मुकाबला करें उनका, बस ये मेरा संदर्भ। वो कोई मतलब निकाले, लेकिन मेरे लिए मैं आज की जो युवा पीढ़ी को मोटिवेशनल तरीके से अहिल्याबाई के जीवन के बारे में बता रहा था। इससे पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर विवादित बयान दिया था। अब सवाल है, आतंक के खिलाफ लड़ाई में जब पूरा देश एकजुट है तो ऐसे में भले पक्ष हो या विपक्ष, आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? सवाल ये भी है, क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर सियासत भारी? तो सवाल ये उठता है कि थरूर ओवैसी जैसे बड़े नेता जो जाने जाते हैं मोदी विरोध के लिए, वो कह रहे हैं सरकार की लाइन ठीक है, उसके बावजूद यहां पर क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर प्रोफेसर अनवर पाशा है, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सोमनाथ भारती है पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में राधिका खेड़ा जी आपसे कर लेता हूं। मैं थरूर और उनकी जो लाइन है, कांग्रेस नई सबक सीख रही, आ रहा हूं, लेकिन मैडम आप लोगों ने भी क्या कोई हार्ड लाइन नहीं ले रखी है? कोई नेता आ जाए, उठकर कुछ भी बोलकर चला जाए। रामचंद्र जांगड़ा पहले कुछ कर बोलते हैं, सफाई फिर कुछ और देते हैं। राधिका खेड़ा है हमारे साथ। चलिए ठीक है, जैसे राधिका खेड़ा आती है मैं उनसे यह सवाल करता हूं। एक बार नेटवर्क में कुछ दिक्कत हुई, उससे ठीक करिए। अजय वर्मा जी आपसे सवाल है, थरूर ओवैसी बातें कुछ समझ में आई आप लोगों को कि सरकार की लाइन क्या है? वो सरकार की लाइन ठीक है? सीज फायर को लेकर शशि थरूर ने जो कहा, क्यों सीज फायर हुआ? देखिए पांडे जी, शशि थरूर साहब को अमेरिका में स्पेशली एक प्लान के तहत भाजपा ने भेजा। कांग्रेस ने जो नाम दिए थे, पार्टी की एक लाइन होती है, ये पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी की एक नीति है, नीति निर्धारण कमेटी है, एक नाम निर्णय लेके भेजा। लेकिन मोदी जी के आईटी सेल और मोदी जी ने क्या किया कि चूंकि ट्रंप लगातार इनके खिलाफ है, कभी टैरिफ की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि युद्ध हमने रुकवा दिया, कभी कहते हैं दोनों व्यापार हैं, कभी अमेरिका को पाकिस्तान को महाशक्ति और भारत को महाशक्ति बराबर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कभी अब कहने रहे हैं कि मैं अगर आपने कंपनी नहीं हटाई कुक टीम को, एप्पल वाले को, तो मैं आपके ऊपर इतना टैरिफ लगा दूंगा। तो कि अमेरिका में हम जान के शशि थरूर साहब हमारे नेता हैं, कांग्रेस के सांसद, भेजा गया कि अगर वहां कोई भी 19-20 बात थरूर साहब करते हैं या कोई चीज होती है या ट्रंप रिएक्शन करेंगे तो हम कह देंगे कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को हमने भेजा है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो ये भाजपा की क्रोनोलॉजी है, सोची समझी रणनीति के तहत ओवैसी और शशि थरूर को सिस्टमेटिक संघ के तहत भेजा गया है, ना कि नहीं ये इतनी अच्छी। अब आप आ जाइए रामचंद्र जांगड़ा पर आऊंगा। वो पहले बीजेपी के हिस्से का सवाल था, राधिका खेड़ा से जवाब दूंगा, फिर उस पर डिबेट कर लूंगा। अभी आपके हिस्से का जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये कहां से इतनी सोच लेकर आ गए कि शशि थरूर ओवैसी को इसलिए भेज दिया कि जाकर 19-20 कुछ बोल दें? नहीं, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, शशि थरूर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर एक प्रतिशोध था, वो पूरा हो गया, उतना ही टारगेट था, टारगेट अचीव कर लिया, हमारा फोकस इकोनॉमी पर है, भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था आज की डेट में ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया। तो आपको दिक्कत सर इस बात से है?
एक जापान से आप तुलना कर रहे हैं, केवल एक पॉइंट के फर्क से जापान का अरे है ना, जापान की एक पॉइंट से आदमी फेल पास हो जाता है। में नोएडा, दिल्ली, 100 में 33 की जगह 32 नंबर आ जाए तो फेल हो जाएगा आदमी यूपी बोर्ड में दिल्ली या किसी भी बोर्ड में। आपके नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, मुंबई, महाराष्ट्र, मद्रास, कलकत्ता, बनारस, इन सबकी तस्वीर आपको भेज रहा हूं। तुलनात्मक अध्ययन, हम ये कह रहे हैं भारत बढ़े, हमें बड़ा सीना गर्व से चौड़ा होगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने, हमें उस पर बन जाएंगे सर। ना हम ये भी ट्रेंड है अजय वर्मा जी की यही ट्रेंड ग्रोथ रेट बनी रही तो 2028 तक आपके मुंह में घी शक्कर, तीसरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान, अगर यही ट्रेंड बना रहा तो। पांडे जी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है सर। आपको और औरों को, हाँ। देखिए आपको और औरों को क्या बताएं, पूछे आप, पूछे बताइए। मैं पूछ तो रहा हूं कि जब पाकिस्तान पर देश ने एक लाइन तय की तो आपकी सियासत की मजबूरी है कि उस लाइन के अगेंस्ट हम चले जाएंगे। नहीं, हमने ऐसी कोई लाइन नहीं बोली, हम ना सेना के खिलाफ थे, लेकिन जब आर्मी के फोटो में, आर्मी की ड्रेस में पहन के नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं और पेट्रोल पंपों में फोटो लगवा रहे, पेट्रोल पंपों पे देखिए जाके पोस्टर आर्मी, अरे भाई सेना के जवान का लग जाता। और तो और राकेश पांडे, आप कश्मीर गए थे, मैं कह रहा हूं आपका फोटो लग जाता, क्योंकि आप युद्ध में लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी युद्ध लड़ने बॉर्डर पे नहीं गए थे, छोड़िए सर, मेरे पर समझ लीजिए, आपका फोटो लग जाता, हमें खुश होता। नहीं, आप अपनी पॉलिटिक्स रखे रहिए भाई, ना पूछे हम, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी फोटो कहीं लगवाने में और अपनी आपके हिसाब की पॉलिटिक्स करने में। लेकिन राधिका खेड़ा एक रिप्लाई करिए, लेकिन उससे पहले नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप रखे रहिए भाई, अपनी सियासत अपने तक रखिए, मेरे तक मत लेकर आइए, वरना उतना ही स्ट्रांग पलट कर आएगा अजय वर्मा जी, नहीं जवाब दे पाएंगे। अब राधिका खेड़ा नहीं है, नहीं है सियासत ना सर, आप अपनी फोटो चिपकाइए। चलिए राधिका खेड़ा जो अजय वर्मा ने कहा उस पर रिप्लाई, लेकिन मैडम उससे पहले मेरा सवाल रामचंद्र जांगड़ा को लेकर है, और सवाल यह कि क्यों नहीं कार्रवाई हो जाती है। विजय शाह में आप लोगों ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, अगर ले लिए होते तो रामचंद्र जांगड़ा को ना तो पहले बयान देने की हिम्मत होती है, ना उसके बाद उस पर सफाई देने की नौबत आती। सभी को नमस्कार। देखिए, जांगड़ा साहब ने जो कहा उसकी उन्होंने माफी मांगी और मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ, और इस बात से बिल्कुल भी ना मैं ना मेरी पार्टी ताल्लुक रखती है, उनको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। अब वो क्या कहना चाहते थे, क्या कह दिया, सभी एक जिम्मेदार पद पे है और उनको जिम्मेदारी से अपने शब्द बोलने चाहिए, और ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि माफी मांगनी पड़े। लेकिन माफी मांगी गई है, मैं उस बात को भी जस्टिफाई नहीं कर रही कि माफी मांग दी तो बात खत्म हो गई। और जहां तक आपने बात करी हमारे मंत्री साहब की मध्य प्रदेश के, तो वो केस कोर्ट के अंदर है, और मैं लगातार आपके शो पे भी कह चुकी हूँ और हर शो पे यही बात बोल रही हूँ कि वो कोर्ट में है, और हम चाहते हैं कि कोर्ट अपना फैसला सुनाए, और कोर्ट को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि आगे से कोई भी ये सबके लिए लागू हो, जो हमारी सेना के जनरल को गली का गुंडा कहते हैं, जो खून की दलाली कहते हैं। क्या कर रही है मंत्री पद से अभी तक क्यों नहीं हटाया? 75 करोड़ महिलाओं को अपमानित करा है, 2 दिन पहले यही ट्रेनिंग दी कि बीच में जाके सेना को अपमानित करा, राकेश जी आप इस आदमी को म्यूट कर दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती और ना मैं इस तरीके की। मैं आता हूं बीच में। अजय वर्मा जी सुनिए सर, सुनिए ना प्लीज सुनिए। आप बोल रहे थे राधिका खेड़ा सुन रही थी, मैं नहीं कह रहा हूं आप काउंटर मत करिए, लेकिन लगातार मत बोलिए। किसी को किसी के बीच में काउंटर करना है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाया करे, अधिक वही बोले जिसकी बारी है। प्लीज एटिकेट्स होती है, प्लीज हो गया। अजय वर्मा जी लगातार नहीं, आपने एक लाइन का काउंटर करना था, कर लिया। अभी राधिका खेड़ा को सुनिए प्लीज। नहीं मैं नहीं बोल रहा, हाँ ठीक है, ये झूठ बोल सर, आप भी बहुत सच नहीं बोल रहे हैं, आप भी सच नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, सच की दुकान आपने भी नहीं खोल रखी है। राधिका खेड़ा बोलिए। हालात है कि 100 पार नहीं कर पा रहे हैं, झूठों के सरताज राहुल गांधी बने हुए और आप उनके प्रवक्ता। लेकिन वापस मुद्दे पे आते, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गली के गुंडे आर्मी के जनरल को गुंडा कहने के लिए, जो लोग माफी नहीं मांगते। खून की दलाली राहुल गांधी कह देते हैं जब आतंकियों को ढेर किया जाता है, तब बालाकोट स्ट्राइक के बाद सबके बाद तब भी माफी नहीं मांगते। लगातार ऐसे ऐसे अलग अलग शब्द आए हैं जिसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी गई है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे नेताओं ने माफी मांगी तो उनका गुनाह खत्म हो गया, नहीं, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए और जो भी कोर्ट फैसला लेगा हम उसके निर्णय के साथ हैं। अब आते हैं बाकी चीजों के ऊपर। देखिए ना, कितने हास्यास्पद स्थिति कर दी है और कितनी बेशर्मी हो चुकी है कि आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा कोई छोटी नेता नहीं है, दूसू की अध्यक्ष रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी है, सोमनाथ भारती जी की पार्टी से बड़ी नेता है और प्रवक्ता है बहुत पुरानी, कोई 15-20 साल 25 साल की छोटी बच्ची नहीं है कि उनकी से स्लिप ऑफ द टंग हो गया।
ऑपरेशन ब्लू स्टार कह देना ऑपरेशन सिंदूर को। मतलब क्या राहुल गांधी आजकल अपने प्रवक्ताओं को ये भी बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना जाना है? क्योंकि इतिहास की जीरो जानकारी और वर्तमान की जीरो जानकारी अगर किसी को है तो वो राहुल गांधी को है, और वही उनके प्रवक्ता आके देखे करते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको यही नहीं पता आज देश में क्या हो रहा है, और फिर आप आके टिप्पणी करते हैं और सवाल पूछते हैं कि कितने जहाज गिरा दिए। अरे भाई साहब, आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन सिंदूर में अंतर नहीं पता। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने तोपें लाके खड़ी कर दी थी स्वर्ण मंदिर के आगे, तहस नहस कर दिया था। वो इतिहास है। मैं तो चाहती हूँ कि आज सरकार स्पेशल सेशन बुला के जो बच्चे 1984 नहीं जानते, जो आज की जनरेशन नहीं जानती, वो जाने कि कैसे इंदिरा गांधी ने तोपें लगाई थी। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो मेरी बात मानेंगे, क्योंकि तो चाहते थे कि नहीं, मैं इस सवाल पर आ ही रहा था। छीन लिया जाए। मैं आता इस सवाल पर, आपने सोमनाथ भारती जी का भी नाम लिया, मैं आ रहा हूं सोमनाथ जी, चूंकि पिन पॉइंटेड ये कांग्रेस का क्वेश्चन है, तो 30 सेकंड अजय वर्मा जी आपके हिस्से है। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन ब्लू स्टार में फर्क है कि नहीं? अभी तक तो अलका लंबा का कोई खंडन भी नहीं आया कि गलती से बोल दिया, इसका मतलब गलती नहीं हुई है, जानबूझकर बोला गया। पार्टी में एक इंसान का नहीं आया। कहाँ है जयराम रमेश? तो बात में ट्वीटी आते रहते हैं। अब मैं बोल लूं, मैं बोल लूं, एटिकेट की बात कर रही हाँ, थी। बोलिए ना, बोलिए। देखिए 1994 नहीं, 1984 था, 1984 का था ये। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी, और जनता की डिमांड्स पर, आर्मी के कहने पर और लोगों के कहने पर, वहां पर जो आतंकवादी थे उस ब्लू स्टार में उन आतंकवादियों को मारने के लिए और उस गुरुद्वारे को कब्जे से मुक्त कराने के लिए किया। और कांग्रेस का इतिहास था कि देश के लिए सुन लीजिए जरा, बीच में नहीं बोला था आप। अभी आप बहुत बदतमीजी की बात कर रही थी कि एटिकेट नहीं है। आपको शर्म करनी चाहिए। आप भाजपा के वो लोग हैं जो महिलाओं का अपमान करती है। भाई आप अभी बीच में, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। गुरुद्वारा साहिब को, महिलाओं को अपमान अभी आप कर रही हैं। पहले आपका मंत्री विजय साय कर रहा है, जगदीश देवड़ा कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, जैसे अजय वर्मा जी आपने काउंटर बीच में किया था, वैसे राधिका खेड़ा ने काउंटर कर दिया। सर एक लाइन में बोलिए, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन ब्लू स्टार में फर्क है कि नहीं? फर्क है? कर ले तो सुन ले जरा। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन ब्लू स्टार में फर्क है कि नहीं है? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, अरे भैया मैं ये बताना चाह रहा हूँ मित्रों, आपका भाई मित्रों उतरो मत करिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस पार्टी के लिए फर्क है कि नहीं फर्क है? या ये स्लिप ऑफ टंग था? ये बताने में आपको क्या दिक्कत हो रही है अजय वर्मा? वो लोग सिंदूर का देखिए, अलका जी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर है, ब्लू स्टार था। अलका जी ने अगर ऐसे कहा है तो उनसे हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। बिल्कुल नहीं कहा गया ना किसी का कोई। तो खंडन क्यों नहीं आया? ये बताना चाहता हूँ, खंडन क्यों नहीं आया? वो क्या जाने, पार्टी के किसी हैंडल से मैंने जहां तक देखा नहीं आया है तो आप दिखा दीजिए। वो क्या जाने, मेरी सुनो, सिंदूर की कीमत वो क्या जाने जो सिंदूर को सौदा ट्रम्प साहब नहीं कर दिया। अरे छोड़िए सर प्लीज, चलिए सोमनाथ भारती जी को लाइए। हो गया सर, हो गया कि हम चौथे, नहीं ठीक है, हो गया। सोमनाथ भारती जी, आपकी पार्टी की ओर से भी कहा गया सिंदूर के सौदागर जो पाकिस्तान में हेडलाइन बनने लायक है। अब इधर ऑपरेशन ब्लू स्टार कह दिया गया, इस पर आप लोगों ने कुछ नहीं बोला? अंदर खाने में कुछ अंडरस्टैंडिंग है? माननीय पांडे जी, मैं बिल्कुल बड़े शांत मन से सुन रहा था, राधिका जी को भी और अभय जी को भी। मैं देख पा रहा हूं कि जब भाजपा कॉर्नर होने लगती है, अजय जब भाजपा एक असहाय पोजीशन में पहुंच जाती है, सवालों घेरे में आ जाती है, तो उसी वक्त कांग्रेस कुछ ऐसा कर देती है कि सारा कुछ डिविएट हो जाता है। पहले राहुल जी ने पूछ लिया था कि भाई कितने आईएएफ के विमान गिराए गए। आज कांग्रेस ने फिर कह दिया कि भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। पहली बात बता दूं, चूंकि पंजाब में मेरी सरकार, पंजाब से मेरा पुराना रिश्ता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज अ पॉसिबली द वर्स्ट काइंड ऑफ अफेयर अ गवर्नमेंट कैन डू ऑन इट्स ऑन पीपल। ओके, तो वो काला इतिहास था और सिख पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा त्रासदी में थे। उसकी जितनी निंदा करें कम है। लेकिन ये कांग्रेस को हो क्या गया है, क्योंकि मुझे लगता है भाजपा कांग्रेस की नुरा कुश्ती है कि जैसे ही भाजपा कॉर्नर होने लगती है, पूरे देश को शर्मसार किया ये कह के कि बहनें अपने आप रक्षा कर लेती। पूरे देश को शर्मसार किया ये कह के भाजपा ने कि जी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। पूरे देश को शर्मसार किया भाजपा ने ये कह के कि जी कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहनें। जब भाजपा कॉर्नर होने लगती है तो कांग्रेस उनकी सेवियर बन के आ जाती है। तो ये मुझे लगता है कि इन दोनों में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि भैया
जब जब तुम समस्या नहीं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग सोमनाथ भारती जी कैसे टूट गई कांग्रेस से? मुड़ जाएगा जो आज आप इतने हमलावर हो गए सर, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे टूट गई? सेकंड बात कह दूं, राकेश जी, हाँ, आऊंगा बात कह दूं। पांडे जी सुनिए, देश सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है। देश क्या है? कुछ भी नहीं। पार्टी पीछे, देश ऊपर। देश पे जब संकट आएगा, आम आदमी पार्टी पूरी पुरजोर तरीके से सेना के साथ खड़ी है। और पाकिस्तान पे जो सेना लगातार पहुंच चुकी थी, वहां पे ठीक पीओके आने वाला था, बलूचिस्तान पाकिस्तान से कट के जाने वाला था। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि अंकल ट्रम्प का कहना मान बैठे मोदी जी। पहली बार अमेरिका को भारत के मामले में हस्तक्षेप करने दे दिया। ठीक है, मैं आता हूं राधिका जी, आप रिप्लाई करिएगा मैडम। शुभ्राज, आपको पता चल रहा है सोमनाथ जी को क्या हो गया? ये अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस से क्यों टूट गई? स्टॉप डूइंग बिजनेस विद यू, कैन यू इमेजिन? जी आप एक बार सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि सोमनाथ भारती जी तो आज कांग्रेस पर भी हमलावर है, इनकी अंडरस्टैंडिंग मैंने पूछा कांग्रेस से टूट कैसे गई, तो नहीं बोल पाए। आज बीजेपी कांग्रेस दोनों को एक तराजू में रखकर इनकी पॉलिटिक्स, शायद पिछले समय की मीटिंग्स, तस्वीरें भूल गए। आज सर पहले भी देश ऊपर था, ऐसा थोड़ा नहीं कि पहले देश ऊपर नहीं था। शुभ्राज था बीजेपी सब पीछे। जी सोमनाथ भारती पहले भी देश ऊपर था हमारे लिए। सोमनाथ भारती जी को कुछ चीजों पे क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे जब आज हम डिबेट कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन सिंदूर की तुलना के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम डिबेट कर रहे हैं, तो क्या हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये तुलना सिर्फ भ्रामक और गैर जिम्मेदाराना नहीं है, बल्कि इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कवायद है। ऑपरेशन ब्लू स्टार धार्मिक स्थल के भीतर सेना भेजने का फैसला था। इसने न केवल सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई राकेश जी, इसने पूरे देश में अस्थिरता और हिंसा का माहौल बनाया। ऑपरेशन सिंदूर एक सीमित पेशेवर आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है, जो कि हमारे देश के बाहर, सीमा से बाहर रहने वाले एक आतंकी राज्य के ऊपर हमला था। इसमें कोई धार्मिक स्थल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसमें निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को निशाना बनाया गया, उनके आतंकी स्थलों को निशाना बनाया गया। अब इन दोनों की तुलना करने के बाद भी अगर हम पैनल में बैठ करके कुछ नेताओं को इसको जस्टिफाई करता हुआ सुने कि नहीं ये तुलना ऐसे की जा सकती है क्योंकि यह क्योंकि वह, तो इसमें हम इसमें क्या डिबेट हो सकती है आप बताइए? ये तर्क और कुतर्क की बात नहीं, ये जबरदस्ती तो कांग्रेस ने आपको एक स्केप रूट दे दिया कि डिस्कशन कहीं और मुड़ जाए। नहीं सोमनाथ जी, आप किसको बोल रहे हैं? मुझे कांग्रेस क्यों स्केप रूट देगी? मेरा कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, आरजेडी किसी से क्या लेना देना? नहीं, वो बीजेपी के लिए कहना चाह रहे हैं। वो हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो कि राधिका खेड़ा बोल रही है, वो ये हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, तो इनको कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए राकेश जी, क्योंकि इनको देश की स्वतंत्र आवाजों पे भरोसा होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरीके के बयान कुछ भाजपा नेताओं से आए, हम ही जैसे लोग हैं जिन्होंने खंडन भी किया उसका। तो अगर ये भेद करना नहीं जानते तो ये मेरी समस्या नहीं है, ये देश के विपक्ष की समस्या है। ठीक है कि वो इंडिपेंडेंट आवाजों को अपनी तरफ भी नहीं। ठीक है अनवर पाशा जी, ठीक है एक अनवर पाशा बोल रहे हैं, एक साथ सबका। राधिका आप रिप्लाई करिएगा। अनवर पाशा चेहरा है कांग्रेस का, आप जो यहाँ पे बैठ के शुभ्राज जी पे टिप्पणी कर रहे हैं कि वो उभरता चेहरा है, ये चेहरा है, महिलाएं तो कुछ भी बोलेंगे। आप क्या है? आप ऑफिशियल चेहरा है? एंट्री है आपकी जयराम रमेश के दफ्तर के अंदर? तो किसी महिला पे टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचिएगा। यहाँ पे मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं। अनवर जी एक मिनट दीजिए। मुझे एक महिला होने के नाते मुझे ये कतई फर्क नहीं पड़ता कि 4 बुजुर्ग पुरुष मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। मुझे ना इनसे सर्टिफिकेट चाहिए, ना मैं इनसे लेजिटिमेसी ढूंढ रही हूँ। अपनी लेजिटिमेसी, अपनी राजनीतियां बना लें, जमानत जब्त होने से बचा लें, टिकट खरीद लें, यही कर लें, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है अनवर पाशा जी, कोई ऑपरेशन सिंदूर को ब्लू स्टार बोलकर चला जाए, खंडन में ना आए, इस पर आप लोगों की जुबान अभी तक सिल गई। मैंने नहीं देखा, अगर किसी और ने बोल दिया होता तो अब तक बखेड़ा खड़ा गया हो गया होता। दूसरी बात है, सीज फायर को लेकर आपकी पार्टी ने भी बहुत पूछा है। शशि थरूर की बातों पर यकीन है? ओवैसी ने जो कहा उस पर यकीन है या उस पर भी यकीन नहीं है? राकेश पांडे जी, आप दो चीजों को एक साथ मिक्सअप कर रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनकी अपने अपने व्यूज, अपने अपने ओपिनियंस हैं। जरूरी नहीं है कि सरकार की गलतियों में भी सारी पार्टियां सरकार के पक्ष में खड़ी हों। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था
हमारे पूरे देश, हमारा और सारी विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी थी, सेना के साथ खड़ी थी। लेकिन जब सरकार ने गलतियां की, वो हमारा इंटरनल मैटर है, सरकार ने गलतियां की, पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया कि हम अटैक करेंगे, आतंकवादी भाग गए। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि सीज फायर कर दो, हमने सीज फायर कर दिया। ये सरकार की गलत नीति है, इसका विरोध हम करेंगे। लेकिन सब आपने सपने में देखा, ये इंटरनल है। राकेश जी सुनिए, मैं कहता हूं ये सब आपने सपने में देखा। सेना ने कह दिया पहले नहीं बताया, विदेश मंत्रालय ने कह दिया पहले नहीं बताया, प्रधानमंत्री ने कह दिया कोई मीडिएशन नहीं हुआ, विदेश मंत्री ने कह दिया कोई मीडिएशन नहीं हुआ। तो आपको यह है कि सरकार सेना पर भरोसा नहीं करना है। ये पूरी दुनिया जानती है। नहीं, पूरी दुनिया आपके कहने से नहीं जानेगी ना। मैं आपको ये बताऊं कि अगर हमारे देश में, अगर हमारे रुकिए अजय वर्मा जी, प्लीज रुक जाइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अनवर जी को कंप्लीट करने दीजिए। कि हमने अपने सरकार की जो गलतियां थी उसको हमने इंटरनल मैटर के तौर पर पॉइंट आउट किया, ताकि सरकार उसको रिफॉर्म करे, उसको सुधारे, आगे वैसी गलतियां ना हो। कौन सी गलती? ये हमारा प्रश्न देशित में है, बता चुका कौन सी गलती, कहां हुई गलती, किसने कहा कि गलती हुई? आरजेडी लिख कर देगी कि गलती हुई? आतंकवादियों को पहले बता देना। कैसे आपने जाना आतंकियों को बता दिया? ये हमारी नजर में गलती है। अरे कैसे जाना बता दिया? मेरी नजर में भी गलती है, कोई बता दे तो। देश एक आवाज होकर कह रहा है। लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे, जो शिष्टमंडल हमारा बाहर गया है, वहां हमें देश का पक्ष रखना है। हम देश के हित में जो पक्ष, तो सर देश का पक्ष है, एक आवाज देश का पक्ष है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रतिशोध था, पूरा हुआ, आगे इकोनॉमी दुरुस्त करेंगे, सीज फायर की रिक्वेस्ट आई, एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। किसी पार्टी के एमपी ने क्या विदेश में जाकर के भारत विरोधी कोई बयान दिया है? नहीं दिया है। ये ब्यूटी है हमारी लोकतंत्र की। राधिका रिप्लाई करिए, राधिका रिप्लाई करिए। इनको लगता है किसी एमपी ने बाहर जाकर भारत विरोधी बयान ही नहीं दिया। लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे अंदर जो है वो डिफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन इंटरनल मैटर में, विदेश में जब हम जाएंगे, हम एक स्वर में बात करेंगे, अब मैं जवाब दे दूं? में बात करेंगे, देश का मान रखेंगे। सुनिए अनवर पाशा जी, राधिका जी कुछ कहना चाह रही है आपसे, सुन लीजिए फिर रिप्लाई कर दीजिए। और हम कर रहे हैं। अनवर पाशा जी सुनिए तो। अच्छा ठीक है, सुनिए। देश के बाहर जो विपक्ष के नेता गए हैं, वो देश के पक्ष को रख रहे हैं, अब मैं सरकार जवाब के पक्ष को रख रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र के पक्ष को रख रहे हैं। ठीक है, इसमें बुराई क्या है? आप उसको दूसरी तरह के इश्यूज में आप उसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो ऑपरेशन सिंदूर, ये आज सवाल नहीं है। अरे क्यों नहीं है सवाल? है कि हम दुनिया ये सवाल पूछ दिया तो आप अनकंफर्टेबल हो गए, दुनिया के सामने, क्योंकि कांग्रेस से आपका गठबंधन है, सामने बिहार का चुनाव है अनवर पाशा जी, तो ये सवाल आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल गया। जो अड्डे मुझे पता है हमने पाकिस्तान में उन पर अटैक क्यों किया, नहीं ठीक है, ये बता रहे हैं। नहीं ठीक है, हमारा अब आपको सुनाई भी नहीं देगा, नुकसान नहीं पहुंचाना। अनवर पाशा भाई आपको सुनाई भी नहीं देगा। चलिए राधिका खेड़ा, वार नहीं चाहते, ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला सवाल चूंकि चुनाव है तो उस पर नहीं बोलेंगे। अनकंफर्टेबल सिचुएशन अनवर पाशा के लिए बोलिए। नीति को देखिए अनवर पाशा जी, आपत्ति हो रही है। रुकिए अनवर भाई, अरे आवाज जा रही है कि नहीं? पीछे चेक करिए, इनको परेशानी हो रही है, चेक करिए अनवर पाशा भाई को आवाज जा रही है कि नहीं? हमारा हक है। हाँ ठीक है, हित में बात, ठीक है सर, हक है, दूसरों का भी बोलना हक है, हमारा हक है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंसेस हैं हमारे, अरे आवाज आ रही है, गलतियां हैं तो राष्ट्र, इन्होंने हेडफोन नहीं अरे लगाया। अनवर भाई आवाज ईपी लगी है कि नहीं? पीसीआर इनके है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अरे इनको ईपी लगी है कि नहीं अनवर भाई को? ओके अब हमारी बारी है। हेलो, हम बोले। अच्छा आप लग रहा है सुन लिए। चलिए बोलिए राधिका। देखिए मैं नहीं जानती कि आरजेडी के प्रवक्ता ये जानते हैं कि नहीं कि DGISPR कौन है, अहमद शरीफ चौधरी। वो जब कांग्रेस पार्टी ने और इनकी बाकी अलायंस साथी, अरे यार चुप रहिए ना, काहे बीच में बोल रहे हैं, काहे बीच में बोल रहे हैं, सुनने की क्षमता रखिए। अरे राकेश जी, इनकी आवाज को अनवर भाई प्लीज हो गया। ये लोग अनवर भाई आवाज आ रही है, मार्केट है। अरे अनवर भाई आवाज आ रही है, ये तो आपका ज्ञान तो होगा। अनवर भाई आवाज आ रही है, आपकी दोस्ती आतंकवादियों से है। अरे अनवर भाई आवाज आ रही है, पहले आपको खबर कर देते हैं उसको। अरे अनवर भाई आवाज आ रही है, भगा दो, हम अटैक आप म्यूट कर दीजिए ना, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। अरे अनवर भाई आवाज आ रही है, अरे पीसीआर पूछिए इनको, एक मिनट इनकी आवाज डाउन करिए, फोन से पहले पूछिए इनको आवाज आ रही है कि नहीं। राधिका तब तक आप बोल, आ रही कि नहीं आपको? आप गलत नहीं आ रही है सर, तो बोल रहा हूँ राधिका को टॉस किया तो रुक जाइए। दिशा में इस पूरे डिबेट को सही दिशा में नहीं तो डिबेट की दिशा आप तय नहीं करेंगे सर प्लीज। तो कोई यहाँ पर बैठकर डिबेट की दिशा तय नहीं करेगा सर, प्लीज आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए सर। डिबेट की दिशा तय करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। राधिका खेड़ा रिप्लाई करिए प्लीज सर। अनवर भाई रुक जाइए प्लीज, नहीं प्लीज, अभी अनवर भाई की आवाज डाउन रखिए, ये नहीं चुप हो रहे हैं। राधिका अपनी बात रखिए।
देखिए, अहमद शरीफ चौधरी ने खुद मीडिया में ये हंस के भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा, जब ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए कि एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री साहब ने पाकिस्तान को फोन करके बता दिया, वो तक आप भारत पे हंसने लगे। देखिए क्या हालत कर दी है कि पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ा रहा है। वो एक इतना सा देश जिसके हमने पर कच्छे उड़ा दिए, घर में घुस के तबाह कर दिया, आतंकी ढेर कर दिए, उनको मजबूर कर दिया कि वो हाथ जोड़ के कहने लगे सीज फायर कर दो क्योंकि भारत की सेना टोक के आई अंदर जाके। वो तक आपके ऊपर हंस दिए कि भारत में देखिए क्या मजाक चल रहा है, इनसे इनका घर नहीं समझला। लेकिन देखिए ना, आज आप जेडी के प्रवक्ता को माफी है क्योंकि देखिए ना, घर की टेंशन इतनी ज्यादा है, घर संभाल नहीं रहा इनसे, तो ये क्या जानेंगे कि देश कैसे संभालना है। हमारे पे देश छोड़ दीजिए, पहले अपना इंटरनल मैटर घर का से हट आउट कर लीजिए। तेज प्रताप यादव साहब क्या कह रहे हैं, लालू जी क्यों नाराज है, पहले घर को सॉर्ट करिए, वो बहुत जरूरी है। घर सुखी तो सब सुखी। देश हम संभाल रहे हैं, देश की जनता ने हमें ये दिया हुआ है कि हम मोदी जी को अपना मत दिया हुआ है कि हम देश को संभालें। आप फिलहाल अपना घर संभालिए, आपको हमारी चिंता, देश की चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है, ना बिहार की चिंता करने की जरूरत है क्योंकि इस समय आप बिहार का चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचे हैं। हमें चिंता करनी है देश की। अरे पहले घर तो संभालो, देश तो बहुत बड़ा है, इतना सा घर संभलता नहीं, एक लड़का संभलता नहीं, परिवार संभलता नहीं, देश संभालेंगे नहीं है, सारा चोर देश संभालेंगे। चलिए किसी और को आने दीजिए। लेकिन देखिए ना किस तरीके से पाकिस्तान में मैं रोकता हूँ भारत का मजाक बनाए, वो बहुत ही मेरा सिर्फ ये कहना था अजय वर्मा जी, सोमनाथ भारती जी ने फिर भी एक लाइन ली, हालांकि ठीक है उनकी सियासी अदावत, सियासी स्टैंड शायद वक्त बदलने के साथ दिल्ली में सरकार जाने के बाद शायद चेंज हो गया हो, लेकिन लाइन उनकी फिर भी ठीक थी। लेकिन अनवर भाई, अजय वर्मा कम से कम सुन लेते, विपक्ष के ही सांसद सरकार का ही पक्ष रख रहे हैं। सरकार, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री ने कह दिया कोई मीडिएशन नहीं, सबने कह दिया सीज फायर की रिक्वेस्ट आई थी, एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि टारगेट पूरा हो चुका था। सर यही देश की लाइन है, रही है इसके साथ, वरना जनता मूर्ख नहीं है।